ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسٹیج پر آپ اپنی نگاہوں سے مشاہدہ معائنہ کر رہے ہیں، ایک سے ایک نعت خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خطیب ذیشان بھی موجود ہیں۔ ناچیز بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہے، اور آج کی اس عظمت والدین کانفرنس میں جو آپ تشریف فرما ہیں سب خوش نصیب ہیں، اور سب سے زیادہ مبارکبادیاں جناب عبدالحکیم صاحب کو میری جانب سے ہے، کہ انہوں نے اس نورانی عرفانی قرآنی بزم کو سجایا رچایا، اور اپنے بچے کی شادی کے موقع پر یہ آن بان شان کے ساتھ انہوں نے اہتمام کیا۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پیش کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ گفتگو ہماری ایسی ہی ہوگی، سنجیدہ بالکل، ہم آپ کو نہ زیادہ نعرہ لگائیں گے، آپ لگائیے گا نہیں، دیگر کام کر کے تشریف فرمائیے گا۔ بس اتنی سی گزارش اور اپیل ہے آپ کی بارگاہ میں کہ میری گفتگو کے لیے اپنے سینے میں تھوڑی سی جگہ دے دیجیے۔ قرآن مقدس کی جن آیت کریمہ عظیمہ شریفہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ پہلے سنیے۔ قرآن کے اندر موجود ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ کس طریقے سے بچاؤ؟ بچائے ہوئے تو اولاد کو تربیت کرنی پڑے گی، اولاد کو تربیت کرنی پڑے گی، اولاد کو قرآن کی تعلیم دینی پڑے گی، اولاد کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کی تعلیم دینی پڑے گی، اولاد کو مذہب اسلام کا ایجوکیشن دینا پڑے گا۔ تو پھر یہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہوگا، اور اپنے آپ کو ہم کیسے بچائیں گے؟ تو اس کے لیے خود بھی اس کردار کو، رول کو اپنانا ہوگا۔ اولاد کی تربیت ہم کس انداز میں کریں تو ہم آپ کے بچوں کی زندگی کے کچھ گوشے کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ 7 سال تک کس ٹائپ کا ہوتا ہے، اسے کیا چاہیے، ماں باپ کو کیا سکھانا چاہیے۔ 7 سال سے لے کر کے 14 سال تک آپ کو اپنے بچوں کے اندر کیا دیکھنا چاہیے، کیا اپنے بچوں کے اندر ڈالنا چاہیے۔ 14 سال سے لے کر کے 21 سال تک آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کیا ویوہار کرنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں بتایا ہوں، سنیے گا۔ ہر ماں باپ ذمہ دار ہیں، کل قیامت میں پکڑ ہوگی، مار لگے گی۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دیا، اپنے بچوں کو تربیت نہیں کیا، آپ کا بچہ شرابی کلالی بن گیا، آپ کا بچہ مذہب اسلام سے دور ہو گیا ہے، تو یاد رکھیے گا کل قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ تھوڑی سی زندگی، دن بدن ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے مثلا 50 سال کی زندگی آپ کی فکس کر دی، اس کا فاصلہ یوں، ایک دن گھٹ گیا، موت یہاں پر ہے، ایک دن اور گھٹا اور قریب ہوئے، ایک دن اور مائنس ہوا اور قریب ہوئے۔ اس طرح سے دن بدن ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور گناہ کتنے تو پوچھئے نہیں کہ کیلکولیٹر سے اگر ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو وہ فیل ہو جائے۔ تو گناہ کے انبار تو کافی اور زندگی میں
कल हमारी मौत होगी, मौत हमें प्यारी मौत गले लगाएगी, फिर ये दारे फानी से हम पूछ कर जाएंगे, फिर हमें अहबाब, दोस्त, औलाद, जुर्रियत, मिलने वाले मुलाकाती रिश्तेदार, रिलेशन के लोग, रिलेशनशिप, फिर अपने कांधे पर सजा करके सफेद लिबास पहना करके हमें अंधेरी कोठरी में, अंधेरी कब्र में डाल करके तने तनहा हमें छोड़ करके वो आ जाएंगे। उस जिंदगी को किस किस ने याद किया? प्यारे, जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, नजात तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की फरमाबरदारी है। नजात तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है आपको, उसकी बजा आवरी में है। खुदा की जानिब से, शरीयत की जानिब से आपको अपनी औलाद के लिए जिम्मेदारी मिली है। अब आप सुने, 7 साल हमें बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? 7 साल हमें अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? तो 7 साल अपने बच्चों को उसूलीन ने फरमाया कि 7 साल तक बच्चों को अपने सीने से मां चिमटा करके रखे। 7 साल तक उसे किसी स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है। 7 साल तक उसे कॉलेज नहीं चाहिए। 7 साल तक माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को तरबियत करते रहे। 7 साल तक माँ की गोद ही बच्चों के लिए स्कूल है, कॉलेज है। उस स्कूल से बढ़कर के कोई कॉलेज और स्कूल नहीं। ए नादान, जिस वक्त बच्चा अपनी माँ के ममता को, मोहब्बत को परखता, बाप की इज्जत को, बाप की मेहनत को परखता, समझता, अपने सादा दिल में वो उस मंजर को लाता, तस्वीर खींचता, तुमने उस टाइम में तो स्कूल का चेहरा दिखाया तो बाप की फजीलत को क्या जानेगा, माँ की अजमत को वो क्या जानेगा। अभी भी कुछ मुल्क के अंदर कानून है कि इतने सालों तक माँ अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को अपने साथ रखे और अच्छी तरबियत करती रहे। मसलन जापान के अंदर अभी भी कानून है, पहले 10 साल तक था, अभी भी कानून है कि 7 साल तक माँ अपने बेटे को, अपनी बेटियों को अपने पास रखे। पहला स्कूल जो उसकी गोद है, उस ममता और उस मोहब्बत की तालीम अपने बच्चों के अंदर, बच्चियों के अंदर पेवस्त करते रहे। आज होता क्या है, पैदा हुआ, 2 साल हुआ, साफ करने का ढंग नहीं है, उसके बाद किताब पहुंचा दिया, देख रहा है तो बैग पीठ पे लटकाना चाहिए तो बगल में लटकाए हुआ है, मस्ती कर रहा है। आपकी अजमत को कहाँ जाना। अब बुढ़ापे में पहुंचते तो वो लात मारता है और बेटा को फजीलत बताते। कुरान कहता है कि बाप तुम्हारा है तो माँ बाप के साथ ऐसा सुलूक करो। नहीं, आपके कौल से बच्चा नहीं सीखेगा, आपके अमल से, आपकी जिंदगी से आपका बच्चा सीखेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि अल वलदु सिर्रुन ली अबीही, बच्चा अपने माँ बाप का अक्स होता है। सुभान अल्लाह। औलाद अपने माँ बाप की तस्वीर बनता है, औलाद अपने माँ बाप की पिक्चर बनती है। पिक्चर बनने के वक्त में आपने तो स्कूल भेज दिया, आप जैसे रहेंगे आपका बेटा वैसा बनेगा, माँ जैसी रहेगी वैसी उनकी औलाद बनेगी। तो आप कहिएगा कि हम उसको रखेंगे साथ में तो तरबियत करे तो वो समझेगा, उसको समझाएंगे तो समझेगा कहाँ। ठीक, सही बात है, समझेगा नहीं। आपकी गुफ्तगू को वो कैच नहीं कर सकता है आपका बच्चा। ये 7 साल से पहले का बच्चा आपकी गुफ्तगू को समझे, सवाल पैदा नहीं होता। पूरी जिंदगी आप 7 साल तक उसको कहते रहिए नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, वो नहीं जानता है नमाज किस चीज का नाम है। तो कैसे सिखाए? तो आपका बच्चा कौल से नहीं सीखेगा, आपका बच्चा आपके अमल से सीखेगा, आपका बच्चा आपके किरदार से सीखेगा, आपका बच्चा आपके रहन सहन से सीखेगा। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अगर गलत आदत उसके अंदर है तो अब अपनी उस पुरानी आदत को बदले। माँ बाप को चाहिए कि अब जो पुरानी कैरेक्टर है, जो खराब आदतें हैं, फितरतें हैं, उसको चैन
चेंज करे, बदले। अब ये तस्वीर खींचना शुरू कर दिया आपका बच्चा, इसलिए आप बदल लीजिए। अब आपको करना क्या है, बच्चों को दिखा करके नमाज पढ़िए। समझता नहीं है कि ये नमाज किस चीज का नाम है, इसको पढ़ने से क्या मिलेगा। लेकिन आपका बच्चा आपकी बोली को तो नहीं समझता है, लेकिन उस पावर को किसी और चीज में दिया गया है तो आपके कैरेक्टर से जरूर सीखता है। अंदाजा लगाइए थोड़ा सा, ये आपको लगता होगा ये कैसी बात हो रही है। मैं बताता हूं, आप अपने घर के अंदर नमाज पढ़िए, घर के अंदर, कहीं और नहीं, घर में। घर में आप नमाज पढ़िए, सोना नवाफिल। तो आप बच्चे को 10 दिन तक कहते रहिए नमाज पढ़ लो, तो नहीं पढ़ेगा, वो जानता ही नहीं नमाज किस चीज का नाम है। लेकिन अपने बच्चों के सामने जब मुसल्ला बिछा करके आप नमाज को शुरू कीजिए तो आपका बच्चा झुकना शुरू करता है कि नहीं। गोया आपका बच्चा ये लेसन दे रहा है, ए अब्बा हुजूर, ए मेरी माँ, आपकी गुफ्तगू को हम समझ तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपके किरदार को हम कैच कर सकते हैं। आप जो करेंगे उसको हम सीख सकते हैं, आप जो करेंगे उस सादे दिल में हम उसको जगह दे सकते हैं। पता चला आपके कौल से नहीं, आपकी बात से आपका बच्चा भी नहीं सीखेगा। सीखेगा किस चीज से? आपके करने से सीखेगा, आपके कैरेक्टर, आप क्या करते हैं उससे सीखेगा। खुद नमाज नहीं पढ़ते, अब बच्चों को कहते हैं बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, हम तो पेंशन में रहते हैं, जिम्मेदार है, कमा करके लाते, तुमको खिलाते, हमको फुर्सत नहीं मिलती है, तुम क्यों नहीं पढ़ते। अरे भाई आप नहीं पढ़ते, ये क्यों पढ़ेगा। आप जब नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, आपका बच्चा क्यों पढ़ेगा। अरे ये बच्चा तो आपकी जिंदगी से सीखने के लायक है। अभी आप अपने आप करके तो दिखाइए। खुद माँ बैठी है टीवी के पास, शर्म कीजिए। हर वो माँ शर्म करें कि साथ में बेटी भी बैठी है, बेटा भी बैठा है, नादान बाप भी बैठा है, और टीवी चालू करके देखता है जिसमें गलत तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ए नादान, तुम्हारी इस जिंदगी से ये बच्चा भी सीख रहा है, कल वो भी वैसा करेगा। ए नादान, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, अंधेरी कब्र में तुम्हें जाना नहीं है, कब्र का सलूक तुम्हारे साथ कितना टेढ़ा होगा। है नादान, इसको सीखा नहीं, झटक दिया। तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारे बच्चे के लिए एजुकेशन है, तुम्हारा अमल, तुम्हारा किरदार तुम्हारे बच्चे के लिए नमूना है। तुम्हारी बात को तुम्हारी औलाद नहीं समझती है, तुम्हारी जिंदगी को समझती है। खुद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाते। हम इस जगह पर हम सबको कहते हैं, हम खुद अपने आप को भी कहते हैं, हम अपने प्यारे अजीज तलबा को भी कहते हैं, हम अपने नौजवान उलमा को भी कहते हैं, शोरा को भी कहते हैं, खुतबा को कहते हैं, बाप को भी कह रहे हैं। ए माँ, आप भी सुन लीजिए, आपसे भी हम मुखातिब हैं। आप जैसी बनेगी आपका बच्चा वैसा सीखेगा। आप जिस तरह के बनेंगे, आपके मानने वाले आपकी गुफ्तगू से नहीं, आपकी जिंदगी से मुतासिर होंगे। अभी तो हम बोल रहे हैं गुफ्तगू, अब पता चला फजर की नमाज गायब है। नमाज क्यों नहीं पढ़ते आप? कह तो दिए, और सुबह में पता चला कि हम सो रहे हैं, नमाज गायब। जिसको हम रात में समझाए कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, सुबह में देख रहे हैं कि हजरत नमाज में हाजिर नहीं है, क्या सोचेगा वो? हजरत की गुफ्तगू में और उनके अमल में, किरदार में तजाद है, टकराव है, मुखालफत है। गुफ्तगू में, किरदार में मुआफकत नहीं है, मुताबिकत नहीं है, मेल जोल नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम 40 साल तक मक्की के सामने जिंदगी गुजारी। सुनिए गौर से, हो सकता है आपकी जिंदगी में ये इनकलाब ला दे। हुजूर मुख्तसर जिंदगी लेकर के आए हैं, थोड़ी सी जिंदगी लेकर के आए हैं। हुजूर तबलीग करना है, इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है। अब तबलीग का काम ओपन तरीके पर, नबूवत का ऐलान कब कर रहे हैं? 40 साल के बाद। क्यों 40? आपकी जिंदगी तो मुख्तसर सी है, ये 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान क्यों? 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान इसलिए कि 40 साल तक मक्की के बीच में हुजूर जिंदगी गुजारे, अपने कैरेक्टर को रखे, नमाज को रखे,
रहन सहन को रखे, बड़ों के साथ मेल मिलाप किस अंदाज का होना चाहिए उसको रखे, किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया, किसी के साथ मक्कारी नहीं किया, किसी बड़ों के साथ बदतमीजी आपने नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी से किस्म बयानी के साथ आपने सलूक नहीं किया, बड़ों की ताजीम की तो छोटों पर आपने शफकत की। 40 साल तक किताबे जिंदगी मक्की के बीच में रही। ए मक्की, पहले वजूद मानो, चूंकि हुजूर जानते थे कौल से कहीं ज्यादा करैक्टर को, तरीक़े जिंदगी को देख करके लोग मुतासिर होते हैं। और हमारे लिए ये जगह बना लेंगे, जब हम मदनी फूल अपनी जबान से अदा करेंगे तो कान में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में जगह मिलेगी। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत अज़मत शादी वाले हैं, नारे तकबीर, नारे समझ में आया? इसलिए प्यारे सबसे हम कहते हैं दिल की अथाह गहराइयों से करें, नमाज की पाबंदी सारे लोग की, चाहे हमारे अजीज तलबा हो, गांव में हो या बाहर हो, हजर में हो या सफर में हो, हर जगह नमाज की पाबंदी कीजिए। आपकी ये कैरेक्टर जो देखेंगे लोग ना, तो आपकी तबलीग में असर होगा, आपकी ये तबलीग, आपका ये किरदार उसको मुतासिर करेगा। उसके बाद जिसको भी आप नमाज पढ़ने के लिए कहेंगे तो दिल में उसकी अजमत है। आपके किरदार को देख करके, आपकी जबान से मुताबिकत देख करके आप कहें या न कहें, आपकी अजमत उनके दिल में एक घर बना। इसलिए प्यारी माँ, आप अपनी बेटियों के लिए नमूना हो। ए प्यारे बाप, आप अपनी औलाद के लिए, जुर्रियत के लिए नमूना हो। आपकी बोली से नहीं, आपके किरदार से आपका बच्चा सीखता है। आपकी जबान से निकले हुए लफ्ज से नहीं, आपके रहन सहन तरीके जिंदगी से मुतासिर होता है। आप अपने आप को सुधारिए। ये मस्जिद कितनी चौड़ी है, नमाजी तो 2 पीस। किस दिन के लिए, किसके लिए इतना मर रहे हैं? कल कब्र में जब वही औलाद अकेली छोड़ करके आ जाएगी, मुनकर नकीर जब आपके पास पहुंचेगा, पूछेगा नेक अमाल क्या लेकर के आएगा, तो क्या जवाब आप देंगे? क्या आप उनको बता सकते हैं कब्र का सलूक किस कदर बुरा आपके साथ होगा? अंदाजा किए, कभी तो मौत को याद कीजिए। तो 7 साल तक बच्चों को चाहिए कि माँ अपनी गोद को उसके लिए अमाजगाह, तालीमगाह, स्कूल और कॉलेज बनाए। उसको दिखा करके नमाज पढ़े, उसको दिखा करके रोजा रखे, उसको दिखा करके सलूक अच्छा करे, उसको दिखा करके अपनी माँ का पांव दबाइए, उसको दिखा करके बाप हैं तो अपनी औलाद के सामने में अपने बाप का पांव दबाइए। आपका बच्चा आपकी गुफ्तगू से नहीं, आपके अमल से सीखेगा। कभी खुदा ने तौफीक दी कि बेटा चलो अब्बा हुजूर बूढ़े हो चुके, पांव दबा दे, कभी तो तौफीक ले लीजिए। आपका बच्चा आपके अमल से सीखेगा। आपका बच्चा ये देखेगा कि मेरे बाप ने अपने बाप की खिदमत की है, कल हम भी अपने बाप का पांव दबाएं। कितने लोगों ने की? बूढ़ा बाप तड़पता रहता है घर में, आराम से बीवी के साथ सोता। जिस बाप ने तुम्हें कमा करके खिलाया, शादी रचाई, खुशियां घर में लाया, उस बाप को तड़पता हुआ छोड़ करके सुकून की नींद सो रहे। जो माँ कड़ाके की ठंडी में तुमने बिस्तर पर पेशाब कर लिया, लिबास में पेशाब कर लिया, तो कपड़ा चेंज करके, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा हटा करके सीने से चमटा करके अपने बदन की गर्मी को दे करके सुलाती रही, बेटा को कहीं ठंडक न लग जाए। आज उस माँ को तुमने दूर कर दिया कि बकरी घर को उसके लिए फिक्स कर दिया। ए नादान, खुद खुशबूदार घर में सोते हो, खुद उस घर में सोते हो कि जिस घर के तुम खूबसूरत बनाए हुए, और उस प्यारी माँ को, प्यारे बाप को इस कदर तुम दूर किए हो कि गैर के साथ भी तुम सलूक नहीं ऐसा करते। प्यारे अजीज इस्लामी भाई, आप मेरी गुफ्तगू को जगह दीजिए। हम बता रहे हैं आपको, और दिल से हम बता रहे हैं
آپ کی زندگی سے، آپ کے کریکٹر سے، آپ کے رہن سہن سے، آپ کے طریقہ زندگی سے آپ کے بچہ سیکھتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے بچوں کو دکھا کر کے، تاکہ وہ نقش آپ کے بچوں کے سینے پر چھپ جائے۔ تو یہ کتنے سال کی بات ہوئی؟ 7 سال تک۔